Now, hello everyone. Again, welcome in video lecture class. Today, I am going to talk about the topic that is AICTE and CSIR. The specified topic that is related to government agencies and that is related to MEd semester 1, paper number 3, education studies, and the unit number is 4. आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एमएड सेमेस्टर 1 के अंतर्गत पेपर एजुकेशन स्टडीज, इसमें की यूनिट पेपर नंबर 3 यूनिट 4 में गवर्नमेंट एजेंसीज के बारे में आज मैं बात करूँगा। इसके पूर्व के वीडियो में मैं AICTE की ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैं उसकी भूमिका और भागीदारी यानी रोल एंड इन्वॉल्वमेंट, साथ ही साथ CSIR के बारे में भी, उसकी भूमिका और भागीदारी के बारे में भी बात कर रहा हूँ। स्पष्ट कहूँ कि ये दोनों संस्थाएं रिसर्च और तकनीकी के क्षेत्र में, दैट मीन्स इन द एरिया ऑफ रिसर्च along with the technical education play a significant role, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साथ ही साथ पूरे देश में ये संस्थाएं किस प्रकार से अलग अलग टेक्निकल इंस्टीट्यूशन स्थापित हो, उसके नॉर्म्स और स्टैंडर्ड को भी निर्धारण करती हैं, फाइनेंशियल एड सपोर्ट करती हैं, और CSIR जहाँ रिसर्च के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाती है, और दैट मीन्स इन्वॉल्व इन द रिसर्च प्रोग्राम, provide financial aid and also organize seminar, conference and so on activities। तो ये इनका क्षेत्र का जो पूरे देश में वो पूरा विस्तृत क्षेत्र है, विस्तृत आधार है। इनकी भूमिका जो है वो भागीदारी विस्तृत है। उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। नाउ वेलकम टू वीडियो लेक्चर क्लास एमएड सेमेस्टर 1। फर्स्ट I will describe in English, after that Hindi. Number 3, All India Council of Technical Education AICTE, role and involvement of AICTE. Some of the major role and involvements of AICTE are as follows. Number 1, progress to technical education. As you know that it is the most important role, that is the fact AICTE brings progress to technical education in the country. Now next, planning and coordination. Planning and coordination. It makes planning and coordination of engineering, management, pharmaceuticals education and architecture education. Number 3, assessment of quality. Assessment of quality. It makes assessment of quality control in technical education. Number 4, advices to government. It advises to government to establish technical education institutions. Now next, provide recognition. That is the most important point. As you know that means it provides recognition to technical institute in the country. Next, number 6, financial aid. It gives financial aid to the develop technical education. Number 7, organizes annual meeting. It organizes annual meeting in every year for the discussion about the whole academic year work and also assess the work. Now next, number 8, organizes conferences and discussion on the different problems. It organizes conferences and discussion on different problems of technical education and determines new yardsticks for technical institutions. Number 9, conducts different training programs. It conducts different training programs on various branches of technical education. Now
Next one is most important and vital, Council of Scientific and Industrial Research, CSIR. CSIR, first you know about the brief introduction of CSIR. The Council of Scientific and Industrial Research, CSIR, is an organization of the central government. This council was formed by the approval of Central Legislative Assembly in the year 1942. It is an autonomous organization. The Prime Minister acts as the president of this executive body, and the Union Minister for Science and Technology acts as the vice president. It has also an advisory board, and the Union Minister for the Department of Science and Technology acts as the chairman of this advisory body. The council helps to provide opportunities for conducting research in the field of science and industry. Now, some of the major role and involvements of CSIR are as follows. Number 1, to provide relevant data. To provide relevant data in the field of science and industry after conducting research. Second, to sponsor research programs. To sponsor research programs and projects in the field of science and industry. Number 3, to sanction grants. To sanction grants to institutions and interested persons for research in science and industry. Number 4, to give financial support. To give financial support to different universities engaged in research activities. Number 5, to review the progress. To review the progress of scientific and industrial research and give advice in this regard. Number 6, to establish new industrial organization. It is most important to establish new industrial organization and bring its development, because development is most important for development of CSIR work. Now 7, to provide a scholarship and fellowship. To provide a scholarship and fellowship for the research work and in the field of science and industry, those who involved in these activities. Number 8, to utilize the research outcome. To utilize the research outcomes in the field of industrial growth, because various industries or sector also wait for the research outcome for helpful the activity of the industry. Now next one is 9, to organize, sponsor and finance seminar, workshop, conference, etc. In the sense, that means to sponsor seminar and workshop play a significant role, and it is the most important platform for discussion each and every research work. Now number 10, to collect and disseminate information. To collect and disseminate information about the scientific and industrial research finding. Number 11, to undertake publication. To undertake publication and to assist publication of science related journal, scientific news and science magazines. Now all things in Hindi. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के निम्नलिखित महत्वपूर्ण भूमिका और भागीदारी हैं. मैं एक एक करके थोड़ा स्पष्ट कर दूं. नंबर 1 जो कि महत्वपूर्ण है, तकनीकी शिक्षा में प्रगति. नाउ नंबर 1, तकनीकी शिक्षा में प्रगति. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद देश में तकनीकी शिक्षा में प्रगति लाता है और ये प्रगति देश की भागीदारी में महत्वपूर्ण है. नेक्स्ट नंबर 2, शिक्षा की योजना और समन्वय. यह इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मास्यूटिकल शिक्षा और वास्तुकला शिक्षा की योजना और समन्वय बनाने में मदद करता है. नंबर 3, गुणवत्ता नियंत्रण का आकलन. यह भी महत्वपूर्ण है. यह तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता नियंत्रण का आकलन करता है और साथ ही साथ इस चीज़ को भी
मापन करता है कि ये जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत जितने भी काम हो रहे हैं संस्थाओं में वह गुणवत्तापूर्ण आधार पर हों। नंबर 4, शिक्षा संस्थानों के स्थापना का सलाह। सरकार को समय समय पर यह तकनीकी शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने के लिए सलाह भी देता है ताकि आवश्यकता के अनुसार तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सके। नेक्स्ट, नंबर 5, संस्थानों को मान्यता प्रदान करना। यह देश में तकनीकी संस्थानों को मान्यता प्रदान करता है और उसके नॉर्म्स और स्टैंडर्ड, दैट मीन मानक और नियम जो हैं वो स्तर है उसको तय करता है और उसी को उन संस्थानों को मान्यता प्रदान करता है। वित्तीय सहायता देना, यह तकनीकी शिक्षा को विकसित करने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नंबर 7, वार्षिक बैठक, यह हर साल वार्षिक बैठक आयोजित करता है और कार्यों की समीक्षा भी करता है और कार्यों के अनुसार योजना प्रदान करता है। नेक्स्ट, नंबर 8, सम्मेलनों और चर्चाओं का आयोजन करना। तकनीकी शिक्षा परिषद विभिन्न समस्याओं पर सम्मेलनों और चर्चाओं का आयोजन करता है और साथ ही साथ तकनीकी संस्थाओं के लिए नए कार्यक्रमों और नए जो आधार हैं उनका भी निर्धारण करता है। नंबर 9, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना। तकनीकी शिक्षा परिषद विभिन्न शाखाओं पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजित करता है ताकि सभी को तकनीकी शिक्षा के आधार पर सही प्रशिक्षण मिल सके और वो तकनीकी संस्था के विकास में भागीदार बने। अब मैं बात करने जा रहा हूँ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बारे में, CSIR के बारे में। सबसे पहले सर्वप्रथम थोड़ा सा मैं उसका इंट्रोडक्शन दे दूं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद केंद्र सरकार का एक संगठन है। इस परिषद का गठन केंद्रीय विधान सभा के अनुमोदन से वर्ष 1942 में किया गया था। यह एक स्वायत्त संगठन है। प्रधानमंत्री इस कार्यकारी निकाय के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री उपराष्ट्रपति के रूप में कह सकते हैं कि उप प्रधान के रूप में, क्योंकि अध्यक्ष होता है इसलिए प्रौद्योगिकी मंत्री जो होते हैं वह उपाध्यक्ष के रूप में, यह सबसे उपयुक्त है कि उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। इसके पास एक सलाहकार बोर्ड भी है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के केंद्रीय मंत्री इस सलाहकार निकाय के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। अखिल भारतीय, दैट मीन्स वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद विज्ञान और उद्योग के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए अवसर प्रदान करने में भी मदद करती है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के निम्नलिखित महत्वपूर्ण भूमिका और भागीदारी हैं जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रासंगिक डेटा प्रदान करना। कहने का तात्पर्य यह है कि औद्योगिक विकास क्षेत्र में अनुसंधान परिणामों का एक आधार है और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम होते, प्रासंगिक डेटा प्रदान करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत ये भूमिका है। सामान्यतः अनुसंधान करने के बाद विज्ञान और उद्योग के क्षेत्र में प्रासंगिक डेटा प्रदान करना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। नेक्स्ट, परियोजनाओं को प्रायोजित करना। विज्ञान और उद्योग के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यक्रमों और परियोजनाओं को प्रायोजित करना भी महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट, नंबर 3, अनुदान स्वीकृत करना। विज्ञान और उद्योग में अनुसंधान के लिए संस्थानों और इच्छुक व्यक्तियों को अनुदान स्वीकृत करना भी महत्वपूर्ण कार्य होता है। नेक्स्ट, वित्तीय सहायता देना। अनुसंधान गतिविधियों में लगे विभिन्न विश्वविद्यालयों में वित्तीय सहायता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे रिसर्च के क्षेत्र में यानी शोध के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य जो है वह सही तरीके से संचालित होता है। नंबर 5, अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा करना। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा करना और इस संबंध में सलाह देना भी इस CSRI का महत्वपूर्ण कार्य है। नंबर 6, संगठन की स्थापना करना। नए औद्योगिक संगठन की स्थापना करना और उसका विकास करना महत्वपूर्ण कार्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, छात्रवृत्ति और अध्येता वृत्ति उपलब्ध कराना। कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान और उद्योग के क्षेत्र में छात्रवृत्ति और अध्येता वृत्ति अनुसंधान के लिए उपलब्ध कराती है, जिससे कि हर वर्ग के या हर तरह के जो छात्र हैं वो आगे बढ़ सकें और काम को सही तरीके से संचालित कर सकें। नंबर 8, अनुसंधान परिणामों का उपयोग करना।
ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट कह सकते हैं और कार्य प्रणाली के अंतर्गत भी ये महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि औद्योगिक विकास के क्षेत्र में अनुसंधान परिणामों का उपयोग करने के लिए बहुत ही समग्र और उचित तरीके से ये काम का संचालन किया जाता है, क्योंकि रिजल्ट परिणाम जो आता है उसके अनुसार अनुसंधान में मदद मिलती है। नंबर 9, सेमिनार और कार्यशाला का आयोजन करना। आयोजन और या प्रायोजक और वित्तीय सहायता सेमिनार के लिए, कार्यशाला के लिए या सम्मेलनों के लिए प्रदान करना CSRI का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इससे कार्यशाला या सेमिनार के क्षेत्र में आगे बढ़ने में और तरह के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर उसे नए चीज़ों को निकल कर आता है, इसलिए यह अति आवश्यक है। नंबर 10, अनुसंधान निष्कर्षों के बारे में जानकारी एकत्र करना। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान निष्कर्षों के बारे में जानकारी एकत्र करता है और साथ ही साथ उनका प्रसार भी किया जाता है, जिससे कि उस क्षेत्र से जुड़े लोगों को फ़ायदा हो सके। और लास्ट में पत्रिकाओं के प्रकाशन में सहायता करना। प्रकाशन और विज्ञान से संबंधित पत्रिकाएँ वैज्ञानिक समाचारों और विज्ञान पत्रिकाओं के प्रकाशन में भी सहायता करता है, क्योंकि ये जर्नल पूरे विश्व में, पूरे राष्ट्र में घूमता है और इससे जुड़े हुए जो नए शोध के शोधार्थी होते हैं वो पढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं, जिससे उस क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। इस प्रकार से मैंने दोनों के बारे में उनकी भूमिका और भागीदारी को स्पष्ट किया। अभी भी जो जस्ट जो डिस्कशन किया, महत्वपूर्ण जो बात की भूमिका और भागीदारी के बारे में, खासकर AICTE और CSRI के बारे में, ये चीज़ें स्पष्ट हैं कि गवर्नमेंट की ये महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं और शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों के लोगों के लिए इसके बारे में जानना समझना अति आवश्यक है। शोध के बारे में जो जुड़े हुए लोग हैं उसके लिए भी है इनकी भूमिका भागीदारी को जानना अति आवश्यक है। तो निश्चित ही आप लोगों को इस चीज़ों को सुनकर जानकर फायदा होगा और इसके ध्यान से सुने, इसके आधार पर नोट्स तैयार करें और अगले क्लास में मैं कुछ और भी जो गवर्नमेंट एजेंसियां हैं उनकी भूमिका और भागीदारी के बारे में आप लोग से बात करेंगे। इसको मैं YouTube पर अपलोड कर रहा हूं। अगर अब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही अपलोड होगा आपको ये वीडियो तुरंत उपलब्ध होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।